हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा है एचआईवी इन्फेक्शन क्या है और हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज दैट इज द इन्फेक्शन। दैट नेम ऑफ दैट डिसीज इज द कैंसर। ओके, जैसे हमने पढ़ा है कि कैंसर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा शायद। ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ टाइम, क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारा कांटेक्ट आता है। सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्फेक्शन और द डिसीजेस। ओके, अभी जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कोरोना, उसके बारे में भी आप सबको पता है। ओके, बट दैट कैंसर इज नॉट द वायरस। जैसे कोरोना एक वायरस है, like that the cancer is not the virus, इसके causative agent ये डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी डिसीजेस है, these disease most of the disease are because of the microorganisms, but that cancer is because of the carcinogenic agent, and when there is growth of the cell starts to divide। ओके, तो हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं दैट अबाउट द कैंसर। सो स्टूडेंट्स, कैंसर कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट disease of the human beings and is a major cause of the death all over the global। ओके, अगर आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ते होंगे, आप शायद न्यूज में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल died because of the cancer disease। तो क्या है ये कैंसर, कैसे ये स्प्रेड होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके कॉजेस है, क्यों ट्रांसमिशन होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, ये सब हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं। Actually, more than a million Indians suffer from the cancer and a large number of them die from it annually. And this mechanism that underlie the development of the cancer, or the we can say here the oncogenic transformation of the cells, that its treatment and control have been some of the most intense areas of the research in the biology and the medicine। Okay, so let's begin with the topic cancer। Now, you know that our body is made up of the cells। Cells ग्रुप में आएंगी तो cells called as the tissues, और tissues मिलके एक organ बनता है। Okay, so that means cell is the unit of life, and in our body the cell growth and the differentiation is highly controlled and regulated। ओके, नॉर्मल जो बॉडी होती है जहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, उस सेल में कंट्रोल, दी सेल्स कैन बी कंट्रोल्ड एंड regulated। But if we talk about the cancerous cell, now you know that cancer is the uncontrolled cell division that leading to the formation of the mass of cells that is called as a tumor। Correct? So in cancer cells, there is a breakdown of this regularity mechanism। नॉर्मल सेल में जैसे नॉर्मल बॉडी में जैसे सेल्स रेगुलेट होते हैं, वैसे कैंसर सेल में ये जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। And the normal cells show a property that called a contact inhibition। Okay, normal cell you can see here, अगर नॉर्मल सेल है आपके बॉडी में तो वो एक प्रॉपर्टी होती है उनकी, दैट प्रॉपर्टी इज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी हमारे सेल ने लॉस कर दी, दैट मीन्स दे आर नाउ द कैंसरस सेल्स, क्योंकि कैंसरस सेल के पास ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती. As a result of this, the cancerous cells continue to divide and giving rise to the masses of cells. These are called the tumors. Okay, ultimately क्या हो जाएगा अगर वहां पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये प्रॉपर्टी ही लॉस्ट हो गई, तो that means there is an uncontrolled cell will divide. और अगर कंटिन्यूअस सेल डिवाइडेशन स्टार्ट हो गया, that means there is a masses of the cells are arised, that is called the tumors. Okay students, so that tumor is the cancerous, or that tumor we called a cancer. but normally देखा जाए तो क्या होता है, that tumors are of the two types. सभी ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस है या नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? That's why these tumors are of the two types, benign tumor and the malignant tumor. अभी फर्स्ट जो ट्यूमर है, these are normally remain confined to their original location and do not spread to the other body parts. अगर फर्स्ट टाइप का ट्यूमर होगा तो वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, वो वहां पे ही रुक जाएगा जहां पे उसकी ओरिजिनल प्लेस है. Correct? So that's why these tumor are not the cancerous tumor. But जो second type है malignant tumor, you can see here the malignant tumors are a mass of the proliferating cells, that is called the neoplastic or the tumor cells. Okay, malignant tumor में क्या होता है? On the other hand, there is a mass of the proliferating cells. These are called the tumor cells, and these cells grow very rapidly, and that invading and damaging the surrounding normal tissue. Of course वो continuously multiply होंगे, पूरे बॉडी के पार्ट्स में अगर स्प्रेड होने लगेंगे जो, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो टिश्यू होते हैं अराउंड द सेल, दैट दे विल डैमेज. And the property by which the cancer cells moves to the distant place from their origin by blood and the invade of the normal cells and make them the cancerous. It is called a metastasis. Correct? तो metastasis का है, क्या है? When cell from such tumor cells that reach distant sites through the blood, and wherever they get lodged in the body, they starts a new tumor there, and this property is called a metastasis. Okay students, तो यहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कुछ टू टाइप्स के ट्यूमर है, इसमें का फर्स्ट जो है दैट इज नॉट द कैंसर ट्यूमर, बिकॉज ये ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड नहीं होता, वो वहां पे ही रुकता है जहां पे उसका ओरिजिनल लोकेशन है. बट अगर हम सेकेंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बात करें, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर डिवाइड होने को स्टार्ट हो गया तो वो दैट विल रैपिडली स्प्रेड इन ऑल ओवर द बॉडी, और वो नॉर्मल टिश्यू जो है उसको भी डैमेज करेगा. देन दे रिच टू ऑल ओवर द बॉडी बाय द ब्लड, एंड दे विल form a new tumor in the wherever such type of cell will lodge, and these property is called the metastasis, and these malignant tumors are very harmful. Okay, so this is about introduction and the types of the cancer.
Next to that, there is the second point, that what are the causes of the cancer. अभी क्या causes हो सकते हैं कैंसर के? आपको पता है कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं व्हाट वी कॉल द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स की, उसकी वजह से द टाइम वी कैन सफर फ्रॉम द कैंसर. Then what is the meaning of the carcinogenic agents? These are the agents when there is a transformation of the normal cells into the cancerous cells, may be induced by the physical, chemical or the biological agent that is called the carcinogens. That means कुछ फिजिकल एजेंट्स है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स है, कुछ केमिकल एजेंट्स ऐसे है, that agents are the carcinogens. But why they are the carcinogens? Because they transform the normal cells into the cancerous cells. अगर हम कुछ रीजन की वजह से ऐसे सारे एजेंट्स से एक्सपोज हो गए, दैट मीन्स हमें सेल डैमेज हो जाएगा. सेल डैमेज हो गया मतलब क्या हो गया? नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कैंसरस सेल्स. ओके स्टूडेंट, सो हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या है, केमिकल कार्सिनोजेंस क्या है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस क्या है. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द फिजिकल कार्सिनोजेंस. फिजिकल कार्सिनोजेंस ऐसे कार्सिनोजेंस है when there is a ionizing radiation like the X-rays, gamma rays, non-ionizing radiations like the UV radiation of the sun. आपने अगर देखा होगा तो कुछ, अगर हम सन के बारे में बात करें तो डायरेक्टली हम सन के रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होते. अगर वैसा हो गया तो देयर इज अ म्यूटेशन कैन ऑकर, डीएनए डैमेज हो सकता है. Okay, this is radiation. Then some gamma rays are there, ultraviolet radiations are there. Okay, so ये जो सारे physical agents है that will affect to us and in our body, and that time there is a conversion of the normal cells into the cancerous cells. Correct? So that means you can imagine that how the physical carcinogens can affect to our body. Okay, ये तो हो गए physical agent. Now next is the chemical carcinogens. Chemical carcinogens क्या है? Like the tobacco smoke is there and other chemicals. Like अगर हम कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करें, बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों को भी, और अगर हम देखें कि सेलिब्रिटीज जो है, सेलिब्रिटीज में हमने देखा तो कैंसर का उनमें ज्यादा हम ऐसे सुनते हैं कि दिस डाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर. उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट उनमें का एक है जो कॉस्मेटिक्स. ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है जो केमिकल से बनते हैं और जिनमें कार्सिनोजेंस कैन बी यूज्ड. सो सच टाइप ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस आर responsible to cause the cancer and to transform the normal cells into the cancerous cell in our body. Also there is a tobacco smoke. Okay, बहुत सारे, अगर हम बात करें इंडिया में तो आई थिंक 90% मेंस and also the women's, these have the, उनको एक एडिक्शन होती है टोबैको स्मोक की. उसकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, अगर हम कैंसर के टाइप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे कैंसर है. ऑर्गन चेंज हो गया तो कैंसर भी चेंज हो गया. लाइक द फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, अगर लंग कैंसर इज देयर, लिवर कैंसर इज देयर.
किनको ओवरी में कैंसर हो जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है और बहुत सारे कार्सिनोजन एजेंट्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन देयर इज अ बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। नाउ द बायोलॉजिकल एजेंट्स are the cancer causing viruses. These are the oncogenic virus that have the genes called the viral oncogenes, and second is the cellular oncogenes, or we are also called as the proto-oncogenes in the normal cell. And when they get activated, that oncogenes transformation of the normal cell. Okay, so that means ये जो cellular oncogenes है or the proto-oncogenes, they are present in the normal cell, and when they get activated under the certain conditions that lead to the oncogenic transformation of the cells. This is the causes of the cancer. उसके बाद है detection of cancer. How will you detect that कि और आप डायग्नोज कैसे करेंगे कि इस पर्सन को ये कैंसर है, वो कैंसर है? First method is the biopsy and the histopathological study of the tissue. Correct? अभी क्या है biopsy? I know that this word is new for you, but don't worry, I will tell you the meaning of the biopsy. Biopsy एक ऐसी टेक्निक है in that a piece of the suspected tissue cut into a thin section that is strained and examined under the microscope by a pathologist. That means क्या करते हैं, अगर किसी को लिवर में तकलीफ हो रही है, लंग में तकलीफ हो रही है, किडनी में तकलीफ हो रही है, तो वो वहां का छोटा सा पीस कट करते हैं. Why? Because that is the suspected tissue that cut into the thin section. Then they will study of that tissue under the microscope. But ये काम जो करते हैं उससे वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं. And this method is called the biopsy. After the biopsy you will get the कि उस टिश्यू में कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है, ये आपको पता चल जाएगा. Second one is the radiography by using the X-rays. Okay, there are अभी जो है बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं. That means the techniques like the radiography or the computed tomography is there, MRI is there. So these all, with the help of all this technique or the non-ionizing radiation can be used. हम इंटरनल ऑर्गन्स में ये सारे टेक्निक्स यूज करते हैं कि इंटरनल ऑर्गन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये डायग्नोज करने के लिए ये सारे टेक्निक्स यूज करते हैं. और वी कैन डिटेक्ट दैट पैथोलॉजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यूज. ओके, ये तो मेथड हो गए. उसके बाद जो है यूज ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन. Some antibodies are there which against the cancer specific antigens are also used for the detection of the certain cancers. And at last there is a techniques of the molecular biology is also used to detect the genes with the inherited of the certain cancers. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हमने डिटेक्ट कर लिया है अभी कि ऐसे डिटेक्ट करना है कि कैंसर कहाँ किस पार्ट से हो गया और वो कैंसर ही है और उधर कुछ है. उसके बाद जो मेथड है, अभी ट्रीटमेंट का वक्त आ गया है. कॉजेस भी पता चल गए आपको, डिटेक्शन भी हो गया है, तो अभी ट्रीट कैसे करें उस पेशेंट को. आपने नॉर्मली सुना होगा कि कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी करते हैं, सर्जरी करते हैं, उन पे रेडिएशन थेरेपी करते हैं.
ये सब करते हैं मतलब एक्चुअल में क्या करते हैं? That we will study in the treatment of the cancer. So the common approach for the treatment of the cancer are the surgery, radiation therapy, chemotherapy and the immunotherapy. Okay, but let me know you that ये treatment, कोई भी पेशेंट आ गया मुझे कैंसर है और डायरेक्टली वहां पे सर्जरी करो, डायरेक्टली रेडिएशन थेरेपी करो, डायरेक्टली उन पे कीमोथेरेपी करो, ऐसा नहीं होता. ये डिपेंड करता है कि वो उनका कैंसर किस स्टेज पे आ गया है. करेक्ट. सो सर्जरी के बारे में बात करें, द कैंसरस टिश्यू इज रिमूव्ड सर्जिकली टू रिड्यूस द लोड ऑफ द सेल्स. सर्जरी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम सर्जरी कब कर सकते हैं. हम सर्जरी तभी करेंगे जब मतलब वो पेशेंट अभी फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है, तो हम वो सेल को पहले से रिमूव कर सकते हैं जो जिसके शायद वो ऑल बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड ना हो. That time that surgery can be happen. When what doing the surgery, the cancerous tissue is removed surgically to reduce the load of the cells. Second जो है that is a radiation therapy. This radiation therapy में क्या होता है? The tumor cells are irradiated lethally, taking care of the surrounding tissue. ओके, उन्हें इरेडिएशन कर देते हैं लीथली, जहाँ पे मतलब सराउंडिंग टिश्यू को कुछ इसका असर ना हो, बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस. देन द कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में आपको अगर पता होगा कि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के. दैट इज द लॉस ऑफ हेयर इज देयर, एनीमिया इज देयर, सच टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी. तो ये क्या है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द कैंसरस सेल्स. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स यूज होते हैं जो कैंसरस सेल को किल कर देंगे. ओके, एंड लास्ट वन इज द इम्यूनोथेरेपी. दैट इम्यूनोथेरेपी involves the use of the biological response modifiers like alpha interferon is there. What they do, they will activate the immune system and help in the destroying the tumor. Okay, कुछ मतलब रेडीमेड इम्यूनिटी हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से अल्फा इंटरफेरॉन की वजह से देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. और अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई, दैट मीन्स अल्टीमेटली दैट हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. बट नॉर्मली देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी that most cancers are treated by the combination of these three, that is the surgery, radiation therapy, or we called it as a radiotherapy, and the chemotherapy. Okay students, तो ये है आपका टॉपिक जो आपको 8th लेसन में पढ़ना था, ह्यूमन हेल्थ अंडर डिसीज, दैट इज द कैंसर. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज क्या होते हैं. ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट. और मैं I'm again requesting you that if you are watching this channel first time or you are watching the video for the first time, please subscribe my channel and like the videos. Thank you so much.